हे दिस इज़ मेडिसिन अनप्लग्ड बाय श्रीनिधि। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एओर्टा की एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एओर्टा, ओरिजिन एंड टर्मिनेशन, मेजर सेक्शंस ऑफ एओर्टा, मेजर ब्रांचेस, एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई, क्विक फ्लो चार्ट एंड सम क्लिनिकल एनाटॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Aorta is the largest artery in the human body. It receives oxygenated blood from the left ventricle and distributes to all parts of the body. Aorta upper end of left ventricle से originate करती है and terminate होती है by dividing into right and left common iliac arteries at L4, that is roughly around level of umbilicus. Now let's see major sections of aorta. Aorta के 4 major sections है, that is ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta and abdominal aorta. Ascending aorta upper end of the left ventricle से originate होती है. It is about 5 cm long and it is enclosed in the pericardium. It runs upwards, forwards and to the right and becomes continuous with the arch of aorta. Ascending aorta 2 branches देती है. Those are right and left coronary arteries जो aortic sinus में से originate होती है. Now, what are aortic sinuses? Aortic sinuses are the dilations जो ascending aorta में present है at the level of aortic valve. ये sinuses में से right and left coronary arteries originate होती है जो myocardium को blood supply करती है. There are 3 aortic sinuses. Anterior aortic sinus जिसमें से right coronary artery originate होती है. Left posterior aortic sinus जिसमें से left coronary artery originate होती है. And the third is the right posterior aortic sinus जो largest है, but it doesn't give rise to any vessel. Now, area of blood supply की बात करें तो coronary arteries हार्ट को blood supply करती है, which is known as coronary circulation, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था और उसमें डिटेल में बात की थी. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. द सेकेंड सेक्शन ऑफ एओर्टा इज द एओर्टिक आर्च और द आर्च ऑफ एओर्टा जो ascending aorta का ही continuation है. It originates at the level of second intercostal space and ends at the level of T4 vertebra. The arch of aorta का beginning and end same level पे है, but वो origin anteriorly करती है and end posteriorly होती है. Now, there is this small ligament attaching aorta to the pulmonary artery. That is called ligamentum arteriosum. That is a remnant of ductus arteriosus. There are 3 branches of aortic arch. First branch of aortic arch is the brachiocephalic trunk. वो largest branch है जो further 2 branches देती है. Those are right common carotid artery and right subclavian artery. The second branch is left common carotid artery and the third branch is left subclavian artery. ये branches को याद रखने के लिए एक simple and easy mnemonic है, that is ABCs. A for aortic arch, B से brachiocephalic trunk, C से left common carotid artery and S for left subclavian artery. So it becomes very easy to remember. अब area of blood supply की बात करें तो brachiocephalic trunk right head, neck and right upper limb को blood supply करती है. उसमें भी specific जाए तो right subclavian artery right upper limb को blood supply करती है. Right common carotid artery further divide होती है internal and external carotid arteries में, जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस बनाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है. वही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेन हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है. लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है. द थर्ड सेक्शन ऑफ एओर्टा इज द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. अगेन डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एओर्टिक आर्च का ही कंटिन्यूशन है जो स्टार्ट होता है at the level of T4 and ends at the level of T12. Now, let's talk about the branches of descending thoracic aorta and its area of blood supply. There are 9 pairs of posterior intercostal arteries जो 3rd to 11th intercostal space में present है. Then comes subcostal arteries on each side, bronchial arteries, esophageal branches जो middle 1/3 of esophagus को blood supply करती है, pericardial branches जो posterior surface of the pericardium को supply करती है, mediastinal branches जो lymph nodes, alveolar tissues of posterior mediastinum को supply करता है, superior phrenic arteries
जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी समटाइम्स 10th इंटरकोस्टल आर्टरी में से भी ओरिजिनेट हो सकती है। नाउ इतने सारे ब्रांचेस को याद रखने के लिए मैंने एक इजी निमोनिक बनाया था, दैट इज बेम्प्स। बी फॉर ब्रोंकियल आर्टरीज, ई से इसोफेजियल आर्टरीज, एम से मीडियास्टाइनल ब्रांचेस, पी फॉर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, अगेन पी फॉर पेरिकार्डियल ब्रांचेस, एस फॉर सबकोस्टल आर्टरी, अगेन एस से सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। These are the branches of descending thoracic aorta. The last part of aorta is the abdominal aorta. Again, abdominal aorta thoracic aorta का ही continuation है. It begins at the level of T12 and at L4 terminate होती है by dividing into right and left common iliac arteries, जो lower limb को blood supply करती है. Abdominal aorta abdominal cavity में run करती है. एब्डोमिनल एओर्टा मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स और पेल्विस को ब्लड सप्लाई करती है। नाउ ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की 4 अनपेयर्ड ब्रांचेस है एंड 5 पेयर्ड ब्रांचेस है। अनपेयर्ड ब्रांचेस में 3 मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो एंटीरियरली सिचुएटेड है और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई करती है। द फर्स्ट मेजर ब्रांच इज सीलियाक ट्रंक, then comes superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery. Middle sacral arteries. So these are the 4 unpaired branches of abdominal aorta. First 3 major branches gastrointestinal tract को blood supply करती है। Celiac trunk foregut को, superior mesenteric artery mid gut को and inferior mesenteric artery hind gut को blood supply करती है। मीडियन सैक्रल आर्टरी और मिडल सैक्रल आर्टरी टेल बोन एंड टॉप ऑफ द पेल्विस को ब्लड सप्लाई करती है। नाउ लेट्स सी पेयर्ड ब्रांचेस। पेयर्ड ब्रांचेस का मतलब है कि वो एओर्टा की दोनों तरफ से निकलती है। देयर आर 5 पेयर्ड ब्रांचेस। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाइज डायफ्राम, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी सप्लाइज मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, लोअर स्पाइनल कॉर्ड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। रेनल आर्टरीज सप्लाइज किडनी. Gonadal arteries supplies ovaries in female and testes in male. Lumbar artery supplies lumbar vertebrae, spinal cord, muscles, joints and skin of lower back. At the level of L4, abdominal aorta common iliac arteries में divide होती है और terminate होती है. These are the branches of abdominal aorta. अब तक हमने briefly aorta के sections, branches and area of blood supply देखा. अब हम quickly इसका flow chart बनाएंगे. मेरे साथ रिपीट करते जाना है। ओके, क्विक रिवीजन। जो डायग्राम्स हमने बनाए उसको याद करना है। तो दिस इज एओर्टा। एओर्टा के 4 मेजर सेक्शंस। फर्स्ट असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड एब्डोमिनल एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के 2 ब्रांचेस, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी सर्कुलेशन बनाती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर एओर्टिक साइनस में से ओरिजिनेट होती है एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस में से ओरिजिनेट होती है। नाउ आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के एबीसीज को याद करना है। ए से एओर्टिक आर्च, बी फॉर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो फर्दर 2 ब्रांचेस देती है, दैट इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। देन गिव्स ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इसमें निमोनिक हमारा था बेम्प्स। बी से ब्रोंकियल आर्टरी, ई फॉर इसोफेजियल आर्टरी, एम से मीडियास्टाइनल आर्टरी, पेरिकार्डियल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सबकोस्टल आर्टरी एंड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। देन कम्स डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा जिसमें 4 अनपेयर्ड ब्रांचेस एंड 5 पेयर्ड ब्रांचेस। 4 अनपेयर्ड ब्रांचेस में सीलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो हमारे जीआईटी को सप्लाई करेगी एंड मिडल सैक्रल आर्टरी। पेयर्ड ब्रांचेस में इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, गोनाडल आर्टरी एंड लंबर आर्टरीज। दिस इज द क्विक फ्लो चार्ट, इजी टू रिमेंबर। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी. Let's discuss it briefly. Clinical anatomy, coarctation of aorta.
कोआक्टेशन का मीनिंग है नैरोइंग. सो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इज द नैरोइंग ऑफ द एओर्टा. ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है दैट इज यूजुअली प्रेजेंट एट द बर्थ, बट समटाइम्स इट मे ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ. Now, due to this narrowing of vessel, blood supply is compromised. There is reduction of blood flow to the different parts of the body. This is present usually at the insertion of ligamentum arteriosum or near ductus arteriosus. Now, due to the narrowing of vessel, resistance बढ़ेगा. Resistance बढ़ने की वजह से afterload बढ़ेगा. Afterload is the pressure against which heart has to pump. Because of increased afterload, there will be hypertrophy. हमने एओर्टिक आर्च के ब्रांचेस में देखा था कि इट सप्लाइज हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब. अब ये जो नैरोइंग है ये ब्रांचेस के बाद प्रेजेंट है, दैट इज डिस्टली लोकेटेड है. सो ब्लड सप्लाई इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड टू अपर लिम्ब एंड हेड एंड नेक. इन पार्ट्स में नॉर्मली ब्लड सप्लाई रहेगा, बट ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड टू लोअर लिम्ब्स, कॉजिंग वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, फटीग, लेग क्रैम्प्स, कोल्ड फीट. So during physical examination, due to compromised blood supply to lower limbs, there is weak and delayed femoral pulse. इसका मतलब कि अपर लिम्ब को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रहा है, सो प्रॉपर रेडियल पल्स भी मिलेगी, बट ड्यू टू कोआक्टेशन femoral pulse will be weak and delayed. It is known as radiofemoral delay, which is the hallmark of the coarctation of aorta. There is also a difference in blood pressure found between arms and legs. Usually high blood pressure in arms and low to normal blood pressure in legs. Symptoms depends on the severity of the condition. Treatment involves surgical coarctation repair. Clinical anatomy, aortic dissection. Aortic dissection is a tear in the innermost layer of the aorta. Aortic dissection को समझने से पहले blood vessel की layers एक बार देख लेते हैं. ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स होती है. बाहर से अंदर की तरफ जाए तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा. नाउ एओर्टिक डायसेक्शन में जो टीयर होता है वो इनर मोस्ट लेयर में होता है, दैट इज द ट्यूनिका इंटीमा ऑफ द एओर्टा. इस टीयर की वजह से ब्लड फर्दर वो टीयर में जाएगा एंड फर्दर एओर्टा के लेयर्स को स्प्लिट करेगा और वो एक फॉल्स ल्यूमेन बनाएगा. सो इस टीयर की वजह से ब्लड फ्लो की 2 चैनल्स बनेगी. फर्स्ट जो वेसल में मूव करेगा एंड सेकेंड जो एओर्टिक की वॉल्स में मूव करेगा. ये टीयर एओर्टा में कहीं पे भी हो सकता है, बट द मोस्ट कॉमन साइट इज असेंडिंग एओर्टा बिकॉज स्ट्रेस ऑन द वॉल्स ऑफ एओर्टा इज हाईएस्ट इन असेंडिंग एओर्टा. एओर्टिक डायसेक्शन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी. नाउ बिकॉज ब्लड फ्लो की 2 चैनल्स बन गई है, सो नॉर्मली जो टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं होगा. सो देयर इज रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. एओर्टा मे रप्चर ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू द लेयर्स. स्टेजेस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन. फर्स्ट, दिस इज नॉर्मल हेल्दी वेसल. Stage 1 is the rupture of the intima due to any cause. Stage 2 is the dissection of media, in which blood moves into the tear and splits the layers. Stage 3 is the rupture of the vessel causing bleeding. What is the cause? Aorta की layers में tear क्यों हो जाता है? So the cause may be weakened aortic wall. Aortic wall weak हो गई है due to any reason like Marfan syndrome और aortic aneurysm और possibly inherited aortic wall weakness भी हो सकती है. और अदर कॉज में भी क्रोनिक हाइपरटेंशन. क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से भी टीयर हो सकता है. क्लिनिकल एनाटॉमी, एओर्टिक एन्यूरिज्म. एओर्टिक एन्यूरिज्म इज अ बल्ज और बलूनिंग और डायलेशन ऑफ द वॉल ऑफ द एओर्टा टू मोर देन 50% टाइम्स ऑफ इट्स नॉर्मल डायमीटर. ये पूरे एओर्टा में कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है. बट मोस्ट कॉमन साइट इज एब्डोमिनल एओर्टा, which is called abdominal aortic aneurysm और AAA. नाउ क्यों होता है ऐसा? ब्लड जो पंप होता है आर्टरीज में उसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आर्टरी का जो भी पार्ट वीक होगा वहाँ पे बलून लाइक बल्ज डेवलप होगा. इस बल्ज को हम बोलेंगे एओर्टिक एन्यूरिज्म. सो इट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ वेसल वॉल और ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एओर्टिक डायसेक्शन और ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन
और पहले से ही एओर्टिक एन्यूरिज्म्स की फैमिली हिस्ट्री है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ वीकेंड वेसल वॉल। दिस इज ऑल अबाउट एओर्टा एनाटॉमी अलोंग विथ ब्रीफ क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें हमने देखा एओर्टा, उसका ओरिजिन एंड टर्मिनेशन, मेजर सेक्शंस एंड ब्रांचेस, एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई, पूरे टॉपिक का क्विक फ्लो चार्ट and briefly clinical anatomy of aorta. I hope you liked the video. If any suggestion, you can drop it in the comment box. Make sure to like, share it to your medico friends and subscribe to my channel. See you soon with another video.